request Ms. Anuradha Prasad to say a few words at our inaugural session. Ms. Madhuri Dixit, our guest of honor, to grace this occasion with her thoughts. रेडियो से भी अभी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे हैं माइक नीचे करने के लिए ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डायस करना पड़ेगा
and then my dear friends from the radio fraternity. I've been associated with UNICEF for the last few years now. I've seen UNICEF work for many children, many of who live in very, very remote areas. These children often become vulnerable due to difficult circumstances or due to lack of timely information. In my conversations with the UNICEF, I have understood the intense need to reach out to these communities who often get left out. Even the simple act of immunizing children in these areas is difficult. The government is doing a commendable job. They're doing a great job reaching out to children in these communities who live in the toughest areas. But I often ask myself that how can we as people come together and help the government with its mission? How can we take collective responsibility to ensure that every child in India is immunized? The media plays a significant role of creating awareness and changing mindsets. And being from the art and media myself, I know that it's very, very efficient. UNICEF has always engaged very strategically with the media and through them has been able to reach out to children across the country. Today I would specifically, I would like to speak about radio. रेडियो की यादें मेरी बचपन की हैं जब आकाशवाणी हुआ करती थी और radio has come a long way from then today. Though Bhimanyu ji still feels we should have a lot of channels. Yes, we should have a lot of channels. But it's come a long way and I think it has a very, very bright future. So while we all know that the radio as a medium reaches out to most marginalized, a lot depends on how the message is packaged, how it is communicated, and hence recalled by the communities. Especially a subject like immunization, which is very clinical, obviously. So thoda boring sa ho sakta hai. It's not like a Bollywood song, ki har ek enjoys it. So it becomes the duty of the radios, the jockeys, to make it interesting and present it in such a way that everybody enjoys it and they understand what they're supposed to do. As a UNICEF celebrity advocate, I would like to begin by thanking all the radio programmers, radio jockeys, and the Association of Radio Operators for being so supportive in taking care of this agenda on immunization and taking it forward. I've seen some of the clips and the programs created by you all, and they're truly, truly amazing. They're really good. So one big applause for all of you, all of these winners here. As a mother of two, I know that the health of my children is very important. I think it's the most important. It's above anything else. And I think it rings true with all the mothers all over the world. The radio, you, have been able to communicate that most important thing in a very soft and effective way. People listen to you, whether it's like the fun programs or serious issues wrapped in fun. People follow what you have to say, and then that puts a big responsibility on you to communicate sincerely with all the right facts in place while making it so much fun to listen. You have been doing that successfully for so many years, and I'm sure you will continue to do so in the years to come. As a UNICEF celebrity advocate, as a UNICEF celebrity advocate, I congratulate you and I appeal to the radio fraternity once again to give space and time to communicate the key issue of immunizations to mothers and caregivers. Thank you so much for being here and thank you for inviting me. Thank you so very much, Madhuri, for your really inspiring words, and they've been encouraging. I would like to now, ladies and gentlemen, just very quickly read out a recorded statement. I just did get a call from Dr. Rakesh Kumar himself, who said, please do read this out to the audience, because he was very keen to join and he unfortunately couldn't. He says, quote, radio's reach, especially that of the public broadcaster All India Radio, remains unparalleled. The vision of engaging radio is also aligned
to India's call to action. आपके पेरेंट्स ने रखा होगा, बहुत सोच समझ के रखा, because you know the people with this kind of a name, they're actually blessed with an inner desire to express themselves, and people with this name actually excel in professions like reading and writing and also public speaking. तो जहाँ जिसका ना कोई आदि है ना आरंभ है, वो है अनादि. So would you like to say a few words on this occasion? Okay, thank you so much. Thank you UNICEF. Thank you Red FM. अगर आप लोगों के यहाँ हम लोग वो वर्कशॉप अटेंड नहीं करते तो हम लोगों को लगता है कि शायद जीवन में हमारे एक ही टीका लगता है जो हमको खुद को लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है. बट यूनिसेफ की जो हमने वर्कशॉप अटेंड करी उसमें हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों को टीकाकरण जो है उसका पता ही नहीं है. और कई गांव ऐसे हैं, कई शहरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ काला टीका नज़र से बचाने के लिए लगाते हैं और टीका नहीं लगाते हैं. तो ये सोच हमारी चेंज करी यूनिसेफ ने. थैंक यू सो मच. और रेड एफएम, हमारी जो रेडियो रेड एफएम जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि बिल्कुल आप बनाएंगे. तो थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर आई हूँ तो बजाते रहो एंड थैंक यू. थैंक यू अनादि. बजाते रहो, टीका लगाते रहो. थैंक यू कैरोलाइन. थैंक यू सो वेरी मच. जी थैंक यू. और यहाँ पर आप आई हैं तो आपसे कुछ सवाल हम करेंगे जो हम भी जानना चाहते हैं. और यहाँ बैठे जितने हमारे रेडियो फेटर्निटी के लोग हैं, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सब जानना चाहेंगे. हर तरह के लोग हैं. किसी को थप्पड़ से डर लगता है, किसी को प्यार से डर लगता है. भाई एक सेल्फी. नहीं यार अच्छा. तो किसी को थप्पड़ से डर लगता है, किसी को प्यार से डर लगता है. आपको क्या इंजेक्शन से डर लगता है? नहीं, क्या है ना, हस्बैंड डॉक्टर ही है तो इंजेक्शन से डर नहीं लगता. ओके मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके भी बच्चे हैं और जिनके भी बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों को पीड़ा होती है तो उसके साथ माँ को भी बहुत पीड़ा होती है क्योंकि दर्द है. तो आप कैसे अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रेडी करती हैं और कैसे किया अभी तक आपने? तो कोई भी बच्चा रेडी तो नहीं हो सकता जी. लेकिन उसे ऑफिस में ज़रूर लेके जाना पड़ता है और उसे बहुत फुसला फुसला के, जैसे ये आइसक्रीम दे दूँगी, लॉलीपॉप उसे बहुत पसंद है तो लॉलीपॉप खिला दूँगी, कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है कि बाबा तू एक इंजेक्शन ले लेना लेकिन मैं कुछ भी करूँगी तुम्हारे लिए. वाह, तो आइडिया मिल रहा है ना इधर से कि कैसे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डरते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है. लेकिन माधुरी जी जो भी करती हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में करती हैं, तो वो तो करेंगी तो लोग मानेंगी. जब यहाँ बैठी भी थी और बातें चल रही थी तो पैर हिला रही थी माधुरी जी, वो भी बड़ा खास था. जो भी करती हैं उसमें एक अदा होती है. और जैसा कि आप बता रही थी मैम कि आप यूनिसेफ से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं. अभी इस खास इनिशिएटिव की हम बात करें, रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करें,
भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है मिशन इंद्रधनुष पे, तो अब आप इससे एसोसिएटेड हैं, इस पे क्या कहेंगे? यूनिसेफ के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ और उसके द्वारा मैं इस इम्यूनाइजेशन के लिए एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है, मैं खुद माँ हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आपको अपने बच्चे हेल्थी चाहिए तो आपको उन्हें इम्यूनाइज करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी सुई होती है बस, और इट्स सो इजी एक्चुअली, क्योंकि आप मतलब हैरान होंगे कि कितने बच्चे 5 साल से पहले ही उनको मौत आ जाती है क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है ये इम्यूनाइजेशन, और बस माँ हूँ और माँ के उस क्या कहते हैं भावना माँ की भावना से मैं ये कह रही हूँ। देखिए, माधुरी जी जो हैं एक बहुत ही अच्छी कलाकार है, हम सबको मालूम है, बहुत अच्छी डांसर भी ये हैं, और जाने अनजाने में भी इन्होंने हमेशा याद दिलाया जी। इनका एक गाना जो इतना बड़ा हिट हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और वो हम अभी साथ ही गा रहे हैं। मैम, लास्ट सवाल ये है कि आज यहाँ पर आप आए हैं, इतने सारे रेडियो प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप खुद भी रेडियो सुनती हैं बहुत, इस खास इवेंट के लिए AROI के बारे में और इस खास इनिशिएटिव के बारे में जहाँ पर इतने सारे रेडियो प्रोफेशनल्स बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगी खास, एंड रेडियो की क्या इंपॉर्टेंस, जैसा आपने कुछ बताया, आरजेस के बारे में कुछ खास मैसेज? हाँ ज़रूर, रेडियो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है कि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो रेडियो ही सुनते जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि आरजेस आ गए हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी बकवास भी करनी पड़ती है कभी कभी, राइट? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वो कहते हैं। जैसे इस इम्यूनाइजेशन के लिए आप देख रहे हैं कितने लोगों ने क्या क्या डिज़ाइन किया है ताकि लोगों को कुछ सीखने मिले, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में, कि कैसे इस मैसेज को कैसे देना है, क्योंकि एक बोरिंग सी बात है भाई, क्लिनिकल बात है, एक मेडिकल बात है कि आप बच्चों को लस ज़रूर लगवाएं और आप उन्हें टीका ज़रूर लगवाएं, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग कैसे करनी है। तो मुझे हमेशा, मैं खुद क्रिएटिव हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कैसे ये सब सोच लेते हैं इन लोग, कैसे ये सब कर रहे हैं। तो रियली कूडोज टू ऑल ऑफ यू कि आप जो एक ऑडियंस है हमारा, जो बहुत 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 रिमोट एरियाज़ में रहती है, उन तक आप लोग पहुँचते हैं, उनसे बातें करते हैं जो हम कभी नहीं कर सकते जी। तो ऑडियंस वो भी लकी है कि आप जैसे लोग हैं जो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच मैम। और आपने जैसा कहा कि कभी कभी हम बकवास भी करते हैं, तो उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि उसी, लेकिन अच्छी लगती है वो बकवास, ये हाँ, मैं भी अच्छी बात ये
और रेडियो मिर्ची और यूनिसेफ दोनों ने आज हम दोनों को इस स्टेज तक पहुंचाया है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने स्टेशन हेड हमारे तापस दा का, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। और इन सब के ये सब तो बोलने की बात है, एक खास बात है जो मेरी बीवी ने मुझे कह के यहाँ भेजा है कि अगर माधुरी दीक्षित के साथ फोटो खिंचवा के नहीं आए तो घर में घुसने नहीं दूंगा। तो अब मैं घर में एंट्री है। तो बच्चे बूढ़े और जवान सभी, हाँ, औरत आदमी सभी दीवाने हैं। अच्छा, ये कितनी अच्छी बीवी है इसकी जो इजाजत दे देती थी। बहुत शरीफ है। आजकल के ज़माने में ऐसी बीवी मिलती कहाँ है किसी को। बहुत तपस्या किया होगा इसने, घोर तपस्या। और वैसे थैंक यू दोस्त, अगर कैमरे में तुम्हारा व्हाट्सएप है तो फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि 2-2 अवार्ड लेकर के हम लोग जाएंगे। 15 किलो से ज़्यादा हो जाएगा तो भाड़ा मांगने लगे फ्लाइट वाला, भारी हो गया ना, बुझ रहे हो ना। और जी हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ फ़ोटो खिंचवा कर, सही में बहुत नर्वस आ रहे हैं। नहीं, पहले दूर से थे पसीने पसीने, अब पास में ठंडी ठंडी आंखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जी। बाकी लोग जलो मत, मेहनत करो। भाई साहब मेरा माइक ही नहीं छोड़ रहे थे।